Hello students, myself Anubhav Kumar Dubey. I am a chemistry teacher from Sugar and Children Academy. In last video, we discussed about node and nodal plane. Okay, today we are going to study a new topic, shape of orbital. Shape of orbital. We know very well how many type of subcell: S subcell, P subcell, D subcell and F subcell. Okay, so first we will discuss shape of S orbital. Shape of S orbital. Shape of S orbital. Okay, so first they are spherically symmetrical. They are spherically symmetrical. Okay, तो shape of S orbital spherically symmetrical. कैसा होता है? spherically symmetrical, मतलब x, y and z. Okay, they do not have directional character. They do not have directional character. It means they do not have directional character, मतलब कि it means they are non-directional. It means probability of finding electron is same in all direction. We know very well shape of S orbital is spherically symmetrical. Okay, and they do not have directional character. It means they are non-directional and probability of finding electron in all directions is same. मतलब हर तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर और स्फेरिकली सिमेट्रिकल. ओके, क्लियर है? चलिए, तो s ऑर्बिटल है n-1 रेडियल नोड्स. n-1 रेडियल नोड्स है ना. फॉर s ऑर्बिटल l is equal to 0. L is equal to 0. If L is equal to 0, then M is equal to 0. It means there is only one value of M. We know very well L is equal to 1, L is equal to 0, so M is equal to 0. If L is equal to 0, it means there is only one orbital is possible, that is S orbital. तो हमारा क्या है? S ऑर्बिटल है ना. तो हमेशा s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0. और if l is equal to 0, then m is equal to 0. If l is equal to 0, it means there is only one orientation. Only one orientation means only one s orbital is possible, और s orbital contain 2 electrons. How many electrons? It means maximum electron in s orbital is 2. ओके, तो ये क्या हमारा शेप ऑफ s ऑर्बिटल. पहले क्या कहेंगे? दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल. कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है. दूसरा, दे डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर. उसके पास कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है. इट मींस, इसका मतलब कि दे आर नॉन डायरेक्शनल. It means probability of finding electron is same in all directions. Okay, s orbital have n-1 radial
नोड्स, इसके पास क्या होता है n minus 1 रेडियल नोड्स, मतलब n is the principal quantum number. Suppose that 3s orbital. So how many radial node present in 3s orbital? I know, yeah, we know very well. S for l is equal to 0. s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी. ओके, तो n minus 1 मतलब 3 minus 1 is equal to 2. It means 2 radial nodes present in 3s orbital, है ना. क्लियर है. अब देखिए फॉर s ऑर्बिटल always n is equal to 0, और I know very well the value of m depends on the value of l. If n is equal to 0, then m is equal to 0, or if m is equal to 0, it means there is only one orientation. It means if only one orientation, अगर वहाँ पे केवल एक ही orientation है, it means only one orbital is possible, that is s orbital, और maximum electron in s orbital is 2, है ना. और शेप कैसा होगा इसका स्फेरिकल होगा, है ना. या जैसे शेप ऑफ एटम कैसा होता है स्फेरिकल होता है, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिवॉल्व करता है. ओके, और जो बीच में गैप होता है वो गैप हमारा क्या है, वो हमारा नोड, वही हमारे क्या है नोड्स. नोड्स मतलब कि the point or region in an atom where the probability of finding electron is 0, that is nodes. ये जो बीच का गैप है वही क्या हमारा नोड्स है. क्लियर. और ऑर्बिटल क्या होता है the three dimensional region around the nucleus where is the probability of finding electron is very high is known as orbital. तो ये हमारा है शेप ऑफ s ऑर्बिटल, है ना. तो समझ में आया शेप ऑफ s ऑर्बिटल. ओके, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. यही हमारा शेप है. तो शेप ऑफ s ऑर्बिटल कैसा होता है स्फेरिकल होता है ना. और कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल होता है. नॉन डायरेक्शनल का मतलब probability of finding electron is same in all direction, है ना. और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी. If l is equal to 0, then m is equal to 0, है ना. चलिए नेक्स्ट शेप पढ़ेंगे. शेप ऑफ p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल, है ना. तो डियर शेप इज डबल. नाउ द डियर शेप इज डबल. इसका शेप कैसा होता है डबल शेप, ऐसे. ये शेप इज डबल, है ना. डबल के शेप को जैसे डबल ही बजा जाता है, बीच में पकड़ने वाला होता है. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं नोड बोलते हैं. ठीक है. और इसमें कितने हाउ मोड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोब्स बोलते हैं. लोब्स क्या बोलेंगे इसको हम लोब्स. ठीक है. तो दे हैव 2 lobes. हाउ मेनी lobes, कितने lobes है इसमें 2 lobes. तो कहेंगे दे हैव 2 lobes, 2 lobes which meet with each other at nodes. Meet with each other at nodes where nucleus is situated. Where is nucleus situated? जहाँ क्या प्रेजेंट होता है nucleus situated होता है. और here is the probability of finding electron is 0. Here is probability of
finding an electron is 0. Okay, so there are shape is double. Shape कैसा होता है? डबल. और they have two lobes. कितने lobes हैं? Two lobes which meet with each other. दोनों क्या होते हैं? जो एक दूसरे से मिलते हैं. कहाँ पे? Meet with each other at nodes. Nodes मिलते हैं where nucleus is situated. जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस. और here इस probability of finding electron is 0. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाने की probability होती है वो क्या होता है हमारा? 0 होता है. ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है कि each p subcell p subcell possess three orbitals. Each p subcell possess three orbitals. One for p orbital L is equal to 1. For p orbital L is equal to 1. If L is equal to 1, then M is equal to 0 plus 1 minus 1. It means there is three orientation. कितनी ओरिएंटेशन है? 3 ओरिएंटेशन. मतलब 0 plus 1 minus 1. Okay, and it is represented as px, py, pz. है ना? हम कहते हैं क्या? If L is equal to 1, then L is equal to 0, M is equal to 0. If L is equal to 2, then M is equal to 1, और then M is equal to 0 plus 1 minus 1. Okay, it means for p orbital M is equal to 2. L is equal to 1 होगा, L is equal to 0, M is equal to 0. तो क्या हो जाएगा? S subcell. If L is equal to 2, then M is equal to 1. और if L is equal to 1, तो कौन सा सबसेल होगा? P subcell. It means P subcell start from M is equal to 2. It means 2p is possible, but 1p does not exist. Why? ऐसा कि 1p क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि p ऑर्बिटल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम n is equal to 2 से. कहाँ से स्टार्ट होता है? n is equal to 2. n is equal to 1 होगा, n is equal to 0, तब तो s सबसेल होगा. p तो आएगा ही नहीं. p कब आएगा? If n is equal to 2, तब then n is equal to 1, तब p सबसेल आएगा. It means p सबसेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2. मतलब 2p तो पॉसिबल है, 3p पॉसिबल है, 4p पॉसिबल है, बट 1p डज नॉट एग्जिस्ट. 1p कभी एग्जिस्ट नहीं करता है. क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें? ओके, चलिए. तो शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स, तो हमको ये क्लियर हो गया कि p सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? p ऑर्बिटल की L की वैल्यू 1 होगी, और अगर L की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू 0 plus 1 minus 1. मतलब there are three orientation और it is represented as px, py and pz. तो what is the shape of px, py and pz? तो इसका शेप क्या होगा? है ना? तो शेप अगर px का बनाते हैं, ओके, तो x axis, y axis and z axis. So this term is present on x axis, name px. So this is the shape of px. देखिए डबल है इसमें, ये डबल px x axis पर. नेक्स्ट x y z, कहाँ पे प्रेजेंट है ये? y एक्सिस पर. नेम क्या हो गया? p y. ओके, अब x y z कहाँ प्रेजेंट है हमारा? ये z एक्सिस पे. तो नाम हो गया क्या? p z. तो शेप ऑफ p ऑर्बिटल, तो शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स में कौन कौन से हमारे px, py एंड pz है ना? मतलब 3 ऑर्बिटल्स. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल
maximum electron in p orbital is 6. कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6. वन ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो p सबसे कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, वन ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन p orbital is 6. Okay, और p orbital always start from n equal to 2, मतलब 2p, 3p, 4p, 5p is possible, but 1p does not exist. Okay, क्लियर हो गया? ये हमारा सेट हो गया px, py and pz. चलिए, तो p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1. If n is equal to 1, then n is equal to 0 plus 1 minus 1. There are 3 orientation. कौन सा? px, py, pz, है ना? और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल इज 6. ओके, नेक्स्ट हमारा है क्या? d ऑर्बिटल्स. d ऑर्बिटल shape of d orbitals. ओके, तो क्या हो जाएगा? दे आर डबल शेप. दे आर डबल शेप. दे आर डबल शेप. डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डबल डम्बल. डम के बाद डैश तक. डम मींस घंटी. घंटी की तरह होता है. घंटी ऐसा होता है, ऐसे, ठीक है? किसी को बेल मींस घंटी. तो कैसा होगा? डबल डम्बल, मतलब ऐसे. इसमें पी में डम्बल था, मतलब एक. इसमें डबल डम्बल मतलब 2. एक ये डम्बल हो गया और एक ये डम्बल. ये हमारा हो गया डबल डम्बल. ओके, और फॉर d ऑर्बिटल्स, फॉर d ऑर्बिटल l is equal to 2. For d orbital n is equal to 2. So the value of m की वैल्यू कितनी है? n is equal to 2, then m is equal to 0 plus 1 plus 2 minus 1 minus 2. मतलब there are 5 orientation. 1 2 3 4 5. There are 5 orientation. Okay, and it is represented as, पहले को किस रिप्रेजेंट करेंगे हम? dxy, सेकेंड को dyz, थर्ड को dzx एंड फोर्थ को dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड लास्ट को dz स्क्वायर. ओके, एक चीज देखिए आप भूल गए. दे आर डबल शेप एक्सेप्ट dz स्क्वायर. Okay, there are 5 orientation. तो dxy, dyz, dzx and dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर. इन चारों का जो शेप होगा वो तो डबल डम्बल होगा, लेकिन dz स्क्वायर का शेप डबल डम्बल नहीं होगा. इसीलिए मैंने क्या कहा? दे आर डबल शेप एक्सेप्ट dz स्क्वायर, है ना? और फॉर d ऑर्बिटल n इक्वल टू 1, है ना? s ऑर्बिटल के लिए n इक्वल टू क्या था? 0. p ऑर्बिटल के लिए n इक्वल टू क्या था? 1. और d ऑर्बिटल के लिए n इक्वल टू क्या है? 2. ओके, तो फॉर d ऑर्बिटल n इक्वल टू 2, और if n इक्वल टू 2 then n इक्वल टू 0 plus 1 plus 2 minus 1 minus 2. तो how many orientation? 1 2 3 4 5. There are 5 orientation and represented as names का dxy, dyz, dzx, dx square dash y square and dz square. The same first 4 से डबल except dz square.
ओके, क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, इसका नेम भी क्लियर हो गया, है ना? तो जो डी ऑर्बिटल्स है, कहें क्या कि डी ऑर्बिटल starts from n equal to 3। ये यस के लिए क्या था, n equal to 1, इसके लिए n equal to 2, इसके लिए n equal to 3। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? तो d ऑर्बिटल starts from n equal to 3। इट मींस 3D is possible, 3D से स्टार्ट होता है इसमें, कभी 2D नहीं आता। क्यों? क्योंकि d की कभी 2 होता ही नहीं है। d के लिए s के लिए n equal to 1 होता है, p के लिए n equal to 2 होता है, d के लिए n equal to 3 होता है। तो 3D पॉसिबल है, बट 1D 2D डज नॉट एग्जिस्ट। 1D एंड 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से। तो d ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम 3D, नॉट 1D और 2D। ओके, चलिए अब इसका हम शेप बना लेते हैं। शेप कैसा होता है हमारा? डबल डबल, शेप डबल डबल, है ना? शेप कैसा होगा? डबल डबल। नेम पता हो गया? चलिए शेप बनाते हैं हम लोग। डबल डबल, देखिए इसमें डबल डबल है कि नहीं? ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, है ना? इसका नेम हो गया dxy। क्लियर? नेक्स्ट, ये कितना इजी है बनाना, कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या था? dyz, ये y हो गया और ये z हो गया। ठीक, क्लियर? ये हो गया dyz, dxy और dyz। ओके, थर्ड क्या है हमारा? ये हो गया dzx, तो dxy dyz एंड dzx, ये हो गया z और ये हो गया x। ओके, और नेक्स्ट का क्या हमारा? dx स्क्वायर माइनस या डैश y स्क्वायर। देखिए ये x, तो x हम इधर का भी ले रहे हैं और इधर का भी, तो x स्क्वायर, और ये हमारा हो गया y, इतने का y ये और इतने का y ये, मतलब y स्क्वायर, है ना? तो सब में देखिए क्या है? डबल डबल प्रेजेंट है ना? लेकिन मैंने क्या कहा था? dz स्क्वायर एक्सेप्ट है ना? उसका शेप कैसा होता है? dz स्क्वायर। देखिए पहले तो एक हम ऐसे लोड्स बना लेंगे, ठीक है? ये लोड्स हमारा बन गया, है ना? अब एक अभी बचा हुआ है, तो एक क्या होता है? वो डबल के फॉर्म नहीं रहता, बल्कि इस साइड का कॉलर है, ऐसे ही मुड़ जाता है पूरा ना, पूरा कॉलर ऐसे मुड़ जाता है। तो वैसे जो पूरा डबल है ये पूरा, वो ऐसे क्या हो गया? पूरा मुड़ गया ऐसे। ये भी हमारा डबल है ये, ठीक है? दोनों डबल है, लेकिन एक डबल आपको दिखाई नहीं पड़ता है ना? इसको देखिए, ये हमारा z, तो dz स्क्वायर, ये z इतने से ये z और इतने से ये z एंड z क्या हो गया? z स्क्वायर। एक डबल तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूसरा जो डबल है वो कॉलर शेप में हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? एक्सेप्ट, है ना? इसी का नाम होता है, ये लाइक दिखता किसकी तरह? लाइक बेबी निप्पल्स, लाइक बेबी निप्पल्स। बच्चे जो दूध पीते हैं निप्पल्स में, आप देखते हैं उसमें कि जो ढक्कन लगा होता है, तो ये हमारा हो गया ढक्कन, ठीक है? और अगर इतना इसको वैसे ढक दें, बंद कर दें, तो ये देखिए साइड में जो ये निप्पल वाला पोर्शन है जो बच्चे के माउथ में रहता है, ठीक है ना?
ये वाला पोर्शन देखिए कैसे दिखाई पड़ रहा है, बेबी निप्पल्स की तरह, है ना। तो इसी के बेस्ड इसका नाम क्या हो गया, बेबी निप्पल्स। ठीक है, इतने को अगर हम ढक देंगे तो ये हमारा हो गया ढक्कन और ये हो गया निप्पल, है ना। तो नाम क्या, बच्चे दूध पीते हैं निप्पल से, तो नाम क्या हो गया, बेबी निप्पल। तो शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर लाइक बेबी निप्पल, ये डबल डबल का होकर के बेबी निप्पल्स होता है, इसलिए हम कहते हैं क्या, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डबल एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, ओके, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, है ना। और कितने ऑर्बिटल हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, और 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 ऑर्बिटल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज 10, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और डी ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम ईयर इक्वल टू 3, मतलब 3d से ही स्टार्ट होता है, 1d और 2d पॉसिबल नहीं होते हैं, ओके। ये हमारा है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, ये लास्ट शेप हमारा कौन सा है, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, है ना। तो पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको रिप्रेजेंट करना बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। वैसे दिखाने के लिए तो हम दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही सबका दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शेप इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, कंफर्म नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको बनाते नहीं है। अगर चाहे तो इसे 7 बार इसे बना दें और उसका नेम मेंशन कर दें तो सही हो जाएगा, है ना। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, अभी इसका कोई फिक्स शेप क्लियर नहीं है ना। यह ऑर्बिटल जो होता है, कहिए कि एफ ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, हमको पता है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा 3 तक। If n इक्वल टू 4 then n इक्वल टू 3, और if n इक्वल टू 3 then n इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, मतलब देयर आर 7 ओरिएंटेशन, इट मींस देयर आर 7 ऑर्बिटल इज पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और 7 ऑर्बिटल्स कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा ये, 14 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। तो यह ऑर्बिटल कंटेन्स या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल इज 14, कितना होता है 14, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, और इसको रिप्रेजेंट किससे हम करते हैं, है ना। तो इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं इसका नेम लिख रहे हैं एक एक का। तो पहले का नाम होगा एफ एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये पहले का नेम है। सेकेंड का नेम क्या हो जाएगा, एफ वाई एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ओके, ये सेकेंड का नेम है, सेकेंड ऑर्बिटल। थर्ड का हो जाएगा एफ जेड एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ओके, ये थर्ड का होगा।
और फोर्थ का नेम हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमारा 4 का हो गया है ना। और फोर्थ का क्या हो जाएगा एफ जेड क्यू। कितने का होगा 1 2 3 4 5 और एक हो जाएगा एफ वाई जेड स्क्वायर एफ वाई जेड स्क्वायर और 7 का हो जाएगा एफ एक्स जेड स्क्वायर एफ एक्स जेड स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एफ वाई एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एफ जेड एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड एफ वाई एक्स वाई जेड और एफ जेड क्यूब एफ वाई जेड स्क्वायर एंड एफ एक्स जेड स्क्वायर। कितने को 1 2 3 4 5 6 7 ये इनके नेम्स। ठीक है, लेकिन इनका कोई भी शेप जो है डेफिनेट नहीं, एक ही शेप हम सबका बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ऐसे बनाते हैं एक्सिस एक्स, जैसे ये है एक्स है, ठीक, ये एक्स वाई पे है, ऐसे करके हम एक्स वाई जेड ऐसे बना लें 3 एक्सिस। अब इसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 दिखा दें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है। ये दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत टफ है, तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, तो इसको पढ़ना कोई बहुत जरूरी नहीं है। जिसका शेप डेफिनेट था उसको हमने आपको दिखा दिया है ना। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा होता है इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम n = 4 then n = 0 if n = 3 n = 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 it means there are 7 orientation, it means there are 7 orbital is possible or 7 orbitals contain 14 electrons and name of 7 orbital is ये। ओके, तो ये इनका नेम है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा शेप ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल्स। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। एंजॉय विद केमिस्ट्री। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आप लोग अपना केयर करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।